Sharpodi Namaskar all of you. I am Srishti. Today we start the summary explanation of this chapter, chapter 4, Animals Fiber. So student, I already provided you audio explanation of this chapter as well as study material related to this chapter. So today we start the summary explanation of this chapter, which is beneficial to understand whole the concept of this chapter. I hope you learn it very well. So student, in this chapter firstly we deal about the climates and the cloths, fiber, different types of fiber, natural fiber or synthetic fiber, plant fiber and animals fiber, wool, other types of wool and how to make wool, silk, process of making of silk, health condition of worker in a wool and sericulture industries. Okay student, you know that cloth is very essential for us because cloth help us to protect us from the different types of weather, climate, hot, cold, insect. It also give a good look or good appearance of your body. Okay student, without when we go early years ago, there is a no clothes. So early human beings use tree, bark, animal skin to wear it. So student, now the condition is developed. Now in the modern age, the condition is developed. So we have a different varieties of clothes. So we wear it according to their different seasons. When we protect our feet with the help of shoes and socks from the weather, condition और dryness, roughness, ये सब चीज़ से हम लोग क्या करते हैं अपने फीट को बचाने के लिए shoes, slippers, socks ये सब का यूज करते हैं. So this is also a types of clothes which protect our feet. So student, according to the climate we wear a cloth. Suppose that in a summer we wear woolen cloth. In a summer we wear cotton cloths, light cloth, because ये हम क्यों हम लोग पहनते हैं कॉटन क्लॉथ्स और लाइट क्लॉथ, बिकॉज ये क्या करता है हमारे बॉडी के इवेपोरेशन में हेल्प करता है, हमारे बॉडी में एयर को जाने देता है. इन अ विंटर सीजन वी वेयर वुलन क्लॉथ्स बिकॉज वुलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी टेम्परेचर. वुलन क्लॉथ हमारे बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने में मदद करती है. अंदर की गर्माहट जो हमारे बॉडी की जो वार्म है वो बाहर नहीं जाने देती है. इवन जो कोल्ड इफेक्ट है वो जल्दी अंदर नहीं आती है, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और हम लोग कोल्ड से बच सकते हैं. सेम इन अ रेनी सीजन वी वियर रेन कोट, अम्ब्रेला, बूट्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन, वाटर और so you know it very well. Next one is fiber. What is fiber? Fiber is a thread-like structure. That means fiber is made up of yarn. फाइबर बना होता है यार्न को ही हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं. धागे नुमा स्ट्रक्चर को लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज yarn. Y-A-R-N, yarn. It is a thread-like structure. The bundle of thread is known as yarn. The bundle of thread is known as yarn. It is prepared by a different process. We study in detail. First one is the type of fiber is, first one is natural fiber and synthetic fiber. What is natural fiber? The fiber which is obtained from nature is known as natural fiber. वैसा fiber जो हमें nature से मिलता है उसे हम लोग natural fiber कहते हैं. Synthetic fibers, when a human beings, when we take a raw material and synthesize it with the chemical process and then obtain the fiber of this type of fiber is known as synthetic fiber. यानी कि synthetic fiber वैसा fiber है जो क्या करता है, जो हम लोग रॉ मटेरियल्स को लेके नेचुरल रॉ मटेरियल्स को सिंथेसाइज करते हैं केमिकल प्रोसेस से, देन ऑब्टेन करते हैं, तो वैसे फाइबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. नेक्स्ट वन इज प्लांट्स फाइबर. नेचुरल फाइबर इज आल्सो टू टाइप्स, प्लांट्स फाइबर एंड एनिमल्स फाइबर. The
फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज प्लांट फाइबर. और देन द बेस ऑफ द प्लांट फाइबर इज सेलुलोज. जो बेस होता है प्लांट फाइबर्स का वो क्या होता है, सेलुलोज का बना होता है. तो जो फाइबर हमें प्लांट से मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट फाइबर. फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, और बताइए आप लोग, फ्लैक्स. These are made up of plant fiber. That means the parts of cellulose parts of plant. Next one is animal fiber. The fiber which is obtained from the animals, it is known as animals fiber. वैसा fiber जो animals के थ्रू हम लोग को मिलता है, animals के द्वारा मिलता है, वैसे fibers को हम लोग क्या कहते हैं, animals fiber. Like wool, silk. In this chapter we especially deal about the animal fiber. Natural fiber has two types, plant fiber and animal fiber. Synthetic fiber are like the example of synthetic fiber is rayon, nylon, polyester, ethylene. These are the examples of synthetic fiber which is prepared by human beings, which is prepared by the synthetic process or chemical process of human beings. But we learn about detailing in animal fibers, wool and silk. Come here, wool. What is wool? When the hair of sheep, हम लोग जानते हैं जो हेयर ऑफ सिप्स के जो हेयर होते हैं उसे हम लोग को उल ऑब्टेन्ड होता है. तो सिप ऑब्टेन्ड उल, सिप प्रोवाइडेड द उल, मतलब हम लोग को सिप के थ्रू उल मिलता है. फॉर द जो सिप के हेयर होते हैं उनसे हम लोग उल प्रिपेयर करते हैं. ये हम लोग क्यों पहनते हैं, क्यों वेयर करते हैं विंटर सीजन में, क्योंकि ये जो उल होते हैं इसमें एक कैपेसिटी होती है, इसके बीच का पोर्स जो होता है सिंथेसाइज नहीं है, बाहर के एयर को और अंदर के एयर को वो बनाए रहता है, वो पास नहीं होने देता है, जिससे क्या होता है, वार्मथ बना रहता है बॉडी का, जिस वजह से हम लोग उल वेयर करते हैं. ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ सिप के थ्रू, सिप के ही द्वारा हम लोग को उल मिलता है. बहुत सारे अदर एनिमल्स हैं जिनके थ्रू भी हमें उल मिलता है. बहुत सारे ऐसे हैं एनिमल्स जो हम लोग के जो फॉरी एनिमल्स हैं, जो स्पेशली पोलर रीजन में और हिली एरिया में रहते हैं, उनसे उल मिलता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज अदर टाइप्स ऑफ वूल. द अदर टाइप्स ऑफ वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैबिट, गोट, कैमल. तो लाइक ए कैश्मीर क्या से मिलता है, कैश्मीर. अदर टाइप्स ऑफ उल है जो हम लोग को गॉट से मिलता है, गॉट से मिलता है. ये गॉट कहाँ रहती है, ये कहाँ पाई जाती है, चाइना और तिब्बत में. जो स्पेशली ये कॉस्टली होता है, वन टाइम से इसका शेयरिंग कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत हिली रीजन में पाया जाता है और एक ही बार मिलता है, तो हम लोग इसका शेयरिंग हम लोग वन टाइम से ही कर पाते हैं. नेक्स्ट है एंगोरा. एंगोरा जो उल है वो किससे मिलता है हमें, एंगोरा रैबिट से मिलता है. एंगोरा उल्स एंगोरा रैबिट से हम लोग ऑब्टेन करते हैं. नेक्स्ट वन है मोहिर. मोहिर हम लोग को नेक्स्ट उल किससे मिलता है, एंगोरा गॉड से मिलता है. एंगोरा गॉड से हम लोग, यानी कि ये सारे एनिमल्स हैं जिनके फर से, जिनके फ्लफी फर से हम लोग या क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उल बनाते हैं. इवन याक ऑल्सो प्रोवाइडेड अ उल. These Angora gods are live in a hilly region like a Himachal Pradesh और जम्मू कश्मीर. याक also obtain the wool. याक से भी हम लोग obtain कर सकते हैं उनको. So other types of wool जो हम लोग other animals से लेते हैं उसमें included है. नेक्स्ट है हाउ टू मेक वूल. हम लोग वूल कैसे प्रिपेयर करते हैं. देयर इज अ डिफरेंट प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ वूल. फर्स्ट वन इज शेयरिंग. शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हेयर ऑफ sheep और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स विच हेल्प अस टू गिव वूल. शेयरिंग ऐसा प्रोसेस
और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनिमल्स है जो ऊल प्रोवाइड करते हैं हमको, तो उनके बालों को हटाना, उनके बालों को काटना, दिस प्रोसेस इज नोन एज शेयरिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग इज द प्रोसेस इन filtering or removing of dust and dirt from the hair of animals. hairs के से हम लोग क्या करते हैं, इसमें डर्ट और डस्ट को रिमूव करते हैं। नाउ रिमूविंग बॉल। अब इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं जो फर होता है, हेयर्स होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, कॉम्ब के थ्रू उसे स्ट्रेट करते हैं, उसे सीधा करने का कोशिश करते हैं। दैट्स वाई वो क्या हो जाए, एक फॉर्म में आ जाए, थ्रेड के फॉर्म में आ जाए और वो स्पेशली यार्न बनने में हेल्प हो। नेक्स्ट वन इज डाइंग। डाइंग इज द प्रोसेस ऑफ कलरिंग द हेयर ऑफ एनिमल्स। मतलब जो हेयर्स होते हैं, जो ये कॉम्ब शेयरिंग के बाद जो हेयर्स एनिमल्स के हो गए, उसको हम लोग क्या करते हैं, डाई कर लेते हैं डिफरेंट कलर में। वॉट एवर यू कलर यू वॉन्ट यू कलर इट। क्योंकि जो हम लोग सिर्फ देखते हैं तो जो ऊल मिलता है हम लोग को, तो वो कौन से कलर का होता है, वाइट होता है, स्पेशली वाइट, ब्लैक और दिस कलर। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डाई करके डिफरेंट कलर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। सपोज दैट येलो, रेड, इस तरह के भी तो ऊल मार्केट में आते हैं। तो वाई इट ऑप्टेड फॉर द डाइंग प्रोसेस। आफ्टर डाइंग इट मेकिंग द यार्न। डाइंग करने के बाद इसको यार्न के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। दैट मीन्स यार्न इज अ बंडल ऑफ थ्रेड। सो आफ्टर मेकिंग अ यार्न वी वीव इट, मतलब हम लोग बुन लेते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, हमारा ऊल ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज सिल्क। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म। यू नो दैट सिल्क इज a very shiny fabric which is very costly because it is obtained from the silk. Silkworm से हम लोग को मिलता है। It is obtained from the silkworm. ये silkworm से obtained होता है। The life process of silkworm. Silkworm firstly क्या करता है, हम लोग सिल्कवर्म को क्या करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसका प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिससे जो कोकून ऑब्टेंड होता है, सिल्कवर्म के कोकून से ही हम लोग क्या करते हैं, सिल्क को ऑब्टेंड करते हैं। जो ये इंडस्ट्रीज, ये जो सिल्क को मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जहाँ क्या किया जाता है, सिल्क के कीड़े को, सिल्कवर्म का पालन किया जाता है और उसके बाद उस प्रोसेस से सिल्क प्रिपेयर किया जाता है। सो स्टूडेंट, फॉर प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सिल्क, फर्स्टली व्हेन द सिल्कवर्म स्पेशली मलबरी ट्रीज के आसपास पाए जाते हैं। जो इस सिल्कवर्म को हम लोग क्या करते हैं, सिल्कवर्म जब डेवलप होता है, फर्स्ट जो अडल्ट सिल्कवर्म होती है वो एग ले करती है ना, मलबरी ट्री के लिप्स पे अपने एग को दे देती है। आफ्टर द हैचिंग ऑफ एग के से निकलने बाद जो वर्म निकलता है वो धीरे धीरे क्या होता है, ग्रोथ होने लगता है फॉर ईटिंग ऑफ मलबरी लीफ। मलबरी लीफ को खाते खाते वो क्या हो जाता है, बड़ा होने लगता है। आफ्टर ग्रोइंग अप दे नीड अ प्रोटेक्ट हाउस। उनको नीड होता है एक प्रोटेक्ट टाइप्स ऑफ हाउस के लिए, उसमें रहने के लिए और ग्रोथ करने के लिए। यही जो प्रोटेक्टिंग हाउस होता है, लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है, अंदर में वर्म होता है और इस तरह का धागेनुमा स्ट्रक्चर वो बुनता है अपने आप को डेवलप करने के लिए, इसमें रहने के लिए। ये क्या कहलाता है, कोकून। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ये कोकून होता है। और इसमें क्या होता है, जब सिल्कवर्म का वर्म इसमें आ जाता है, अपने आप को डेवलप कर लेता है, फिर ये कोकून्स को हम लोग क्या करते हैं, इसी कोकून का यूज़ करते हैं। जो सेरीकल्चर में जो वर्कर्स होते हैं इस कोकून को कलेक्ट करके फिर उसे बॉईल करते हैं, जिससे बॉईल करने से जो अगर इसमें इंसेक्ट अंदर में होगा तो वो किल हो जाता है और इसे हम लोग रिफाइन कर लेते हैं। आफ्टर रिफाइनिंग एंड गिविंग अ केमिकल प्रोसेस वी कन्वर्टेड इनटू अ थ्रेड, और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं थ्रेड में। थ्रेड के बाद हम लोग वीविंग कर लेते हैं। सो नाउ दिस प्रोसेस वी ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम द सिल्कवर्म। So student, next topic is health condition of worker in a wool and sericulture. Sericulture और wool industries में जो वर्कर यूज करते हैं, वर्कर वर्क करते हैं, उनको बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम को भी सफ़र करना पड़ता है। जैसे सपोज डैट सॉर्टर डिजीज हो जाता है, जिसमें क्या हो जाता है, पीपल
in a wool industry sometimes get infected in a bacterium called anthrax. एंथ्रेक्स नाम का बैक्टीरिया होता है जो ऊल के जो हेयर होता है, जो ऊल के लिए हम लोग हेयर जो ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स से जो फ्लफी हेयर देते हैं, उस हेयर में एक एंथ्रेक्स टाइप का बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, डिजीज का रीजन बनता है उस वर्कर में. इट्स लेट द फ्लैटली ब्लड डिजीजेस कॉल्ड द सॉर्टर डिजीज. ये किस तरह का डिजीजेस उत्पन्न करता है, ब्लड डिजीज उत्पन्न करता है, ब्लड डिजीज को कंटेन करता है. कैसे, कहाँ के वर्कर में, वूल इंडस्ट्रीज के वर्कर में. नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी डिजीज. रेस्पिरेटरी डिजीज भी होता है कहाँ, सिल्क इंडस्ट्रीज में, सेरिकल्चर प्रोसेस में. कैसे होता है, इनहेलेशन ऑफ वेपरेशन अराइजिंग फ्रॉम कोकून अंडर द स्टीम कुकिंग एंड रिफिलिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग. जब क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है सिल्क मिल्क प्रिपेयर करने के लिए, जो इवेपोरेशन होता है, स्टीम प्रोवाइड किया जाता है कोकून्स, और कोकून्स को स्टेबल करने के लिए केमिकल्स डाला जाता है इस कोकून्स को और थ्रेड में कन्वर्ट करने के लिए, और जो सिल्क वॉर्म अंदर जो होते हैं उसको किल करने के लिए. तो इस सारे प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारे स्टीम्स, इस तरह का केमिकल प्रोसेस ये रिलेटिंग हो जाता है, जो क्या करता है, प्रॉब्लम हो बन जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, स्पेशली अस्थमा और ब्रोंक्लिट एलिमेंट, मतलब जो लंग्स में ब्रोंक्लिट होते हैं ना, उसमें सांस लेने में ये प्रॉब्लम यहाँ के वर्कर में आ जाती है. नेक्स्ट डिजीज क्या है, स्क्रैपिंग एंड अदर स्किन इन्फेक्शन. कुछ स्किन इन्फेक्शन भी हो जाते हैं. व्हाई, व्हेन वी यूज द केमिकल सब्सटेंस, व्हेन द वर्कर इज यूज द केमिकल सब्सटेंस टू मेकिंग अप silk or boiling on different stretching the yarn, so the worker gets suffer from the skin disease related to the chemicals for these. So this is also harmful. These industries affect the worker of this industry. मतलब ये सारी इंडस्ट्री जो है वर्कर, इस वर्कर के इंडस्ट्रीज यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को कुछ ना कुछ नुकसान भी देती हैं. So student, I hope you understand this chapter. Already I explained you, but I also provided you video explanation of whole chapter, chapter 1, chapter 2, chapter 4 and chapter 5. I hope you listen it, you understand it. Now you study well. I also provided you some study material as your class. I hope you prepared your homework copy, classwork copy, whatever I giving you notes. So student, you prepare it all the work at home. Keep safe and also study. Thank you so much.